Good evening, students. Today I will start with 12th Commerce Economics subject and chapter number 1 I will start Graphs in Economics. Okay. This chapter is based on graphs and diagram. Okay. The weightage of this chapter in the board exam is of nearby 8 marks. 8 marks weightage. In that they are asking 1 marker, 2 marker and 3 marker. Not long question. E section questions are not asked in this particular chapter. Okay. As I told you, the first chapter is based on graphs and diagram. Moving on explanation part. Let's begin with the topics which are covered under this chapter. See, in this chapter, there are total 5 topics. First, they had given the introduction. Second, meaning and importance of graphs and diagram. Third topic is types of diagram. Uses of technology in study of economics. Uses of internet technology. Caution in using computer technology and internet. Okay, dear students, means there are total 5 topics which we have to learn in this chapter. Okay. And in today's video, I will complete 2 topics, introduction and meaning and importance of graphs and diagram. In between the explanation part only, I will give you the brief idea what are coming, means which type of question are asked in your board exam, especially. Okay. Moving on first topic, that is introduction part. Okay. Economics. In economics, graphs and diagrams are very much important because it gives us brief idea, brief knowledge about our surrounding, what is happening, where is happening. Okay, so economic study is very much important for us to know about the real world, what is happening, where is happening, how it is happening. Okay, so that's why economics is important. And now introduction. In this chapter, they had given how the graphs are important, how the diagrams are important in our economics, why we have to study the graphs and diagrams, in specially to explain the economics data. Okay, as you know, the first point which you can see, economic means explains and analyze the various events occurring in the real world. Okay, means whatever the problems, whatever the analyzation we are doing, okay, in our real life several economic things are happening surrounding us. Okay, not only in surrounding us, in our nation, in our world. Okay, real world, that are explained and that are analyzed in the economics. Okay, now analyzing, while doing the analysis there are the certain figures, measurements, units are coming across us, and to measure and to present them in a better way out so the normal person can understand. इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्राफ और डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमारे रियल पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल लाइफ में. ओके, और जो भी एनालाइजेशन होता है बच्चों स्टैटिस्टिक के टर्म्स पे, ओके, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है नंबर्स में, यूनिट्स में, ठीक है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इन इकोनॉमिक टू अंडरस्टैंड, किसको, नॉर्मल कॉमन पीपल को भी आसानी से वो समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है और किस बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन with the chapter. Okay, analyzing the statistics of national banks and international organization in the particularly economic. हम जो इकोनॉमिक में एनालाइजेशन करते हैं स्टैटिस्टिक डेटा को, वो जो प्रोवाइड किए जाते हैं नेशनल बैंक से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, उनको हम ब्रीफ करते हैं, कंपेयर करते हैं. प्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है, डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इन इकोनॉमिक्स इवेंट्स प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम टू अंडरस्टैंड कॉमन मैन इन इजी एंड बेटर वे. ओके,
why we are presenting this data in the form of graphs and diagram? हम क्यों प्रेजेंट करते हैं? इसके पीछे क्या है? अंडरस्टैंड करने के लिए कि कॉमन मैन जो है वो आसानी से और उसे बेटर वे में समझ सके. Common man is interested in economic impacts, not in economic policy. As you know, government now every day or every year, ठीक है, financial year, particularly new policies they are bringing out. गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उसमें कॉमन मैन इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पे क्या पड़ रहा है वो मेन इंटरेस्टेड होता है कि वो उसका उन्हें फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो ही वो इकोनॉमिक के इम्पैक्ट पे वर्कआउट करते हैं, नहीं तो करते नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट आर क्रिएटिंग बट टू मेक इंटरेस्टफुल, attractive, so that common man take a interest in that and that can be utilized and impact by them to utilize them and implement them by themselves. Okay, वो खुद से आसानी से वो उसको ग्रैब कर सके. Second, to study comparatively data, graphs and diagrams. ग्राफ हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है. जब कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल दो इंडस्ट्री है सेम टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इकोनॉमिक में, हमारे सिटी में या हमारे कंट्री में, तो अब उनका जो डेटा है, ठीक है, अब वो सेल्स का, प्रॉफिट का, मार्केट की उनकी क्या स्ट्रेटेजी है वो यूनिट्स में, नंबर्स में लेके आएंगे डेटा, ठीक है, और वो डेटा को जब हम ग्राफ के टर्म पे, डायग्राम के टर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को, तो वो आसानी से हमें पता चल जाता है कि वो सेल्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है. कंपेयर करने के लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स whether it is in a benefit form or whether it is not. Okay, it is used in a different way in different condition. एक बेस पे वर्कआउट की नहीं जाती है, ग्राफ को और डायग्राम्स को यूज नहीं किया जाता है, डिफरेंट वेज में यूज किया जाता है और हर एक कंडीशन डिफर होती है. मीन सिचुएशन बेस पे वर्कआउट किया जाता है बच्चों, एक बेसिस पे वर्कआउट किया जाता नहीं. मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज मीनिंग ऑफ डायग्राम. ओके, meaning of diagram which is given in your textbook. As per economics, diagram is a representation of observable data by way of a picture. Okay, डायग्राम क्या है? एज पर इकोनॉमिक्स क्या है? डायग्राम रिप्रेजेंट करता है जो भी डेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पिक्चर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ यू वांट टू नो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ पिक्चर इज कॉल्ड अ डायग्राम. मीन्स इन दो स्टार्टिंग पॉइंट्स में मैंने डेफिनेशन दी है आपको डायग्राम की और उसे पर्टिकुलरली समझाया है. मीन्स रिप्रेजेंटेशन, जो भी वेरिएबल्स दिए हैं, जो भी नंबर्स या फिगर्स दिए हैं, उनको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया जाता है और वो जो पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे डायग्राम कहा जाता है. ठीक है, नाउ as I had given you more points more points I had shown you in this particular slide. Okay, why, what is the reason behind that? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आता है डायग्राम और ग्राफ का, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है और डेफिनेटली आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं. नो डाउट 2 या 3 पॉइंट तो आप आसानी से लिख लेते हो, फिर उसको ज्यादा और अच्छे से आसानी से लर्न हो जाए और उसे पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करने का डिफरेंस बिटवीन में, इसलिए मैंने इधर पॉइंट्स में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो डिफरेंस बिटवीन इसी फॉर्म में आप क्रिएट भी कर सकते हो. ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ. ओके, और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा. स्केल्स एंड मेजर्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम. हमको स्केल्स की जरूरत पड़ती है, हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है जब हम ड्राइंग करते हैं डायग्राम को. थ्रू थॉर स्पेशली नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ. स्टैटिस्टिकल नॉलेज हमें चाहिए नहीं, नो फॉर्मूला, नो स्टैटिस्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ डायग्राम. अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा. आपको कोई की हेल्प नहीं चाहिए कि ये डायग्राम क्या कहना चाहता है, आपको कोई की हेल्प नहीं चाहिए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, व्हाइल लुकिंग ओनली यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. आप वो डायग्राम को देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो डायग्राम कहता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा रस्तों पे या बड़ी बड़ी पर्टिकुलरली एडवर्टाइजमेंट कंपनी, सेव वाटर, सेव अर्थ, कैसे टैप दिखा देते हैं एक बूंद पानी अर्थ के ऊपर. ठीक है, तो ये डायग्राम्स क्यों दिखाए जाते हैं? टू क्रिएट अ अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. ओके, व्हाइल दैट पिक्चर. ओके,
तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो पिक्चर को देख के ही समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारी ये हालत हो जाएगी। डायग्राम ही ऐसा प्रेजेंट करते हैं। तो वो डायग्राम देख के कोई को ऐसा नहीं है भाई मेरे को ये डायग्राम बता, ऐसा कोई नहीं करता बेटा, ठीक है। while showing looking only we can understand that we have to save the water, otherwise there will be no water on the earth, okay। So that is the reason why the diagram doesn't require any knowledge, why not need any expert to explain it, okay। And a person do not require detailed knowledge to understand a diagram, कोई detailed knowledge या पढ़ा लिखा ही नहीं जरूरत है, ठीक है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है डायग्राम को समझने के लिए। In economics, when data is discrete, diagram is used. Means discrete data, as you are familiar with the statistics subject. Discrete means smaller unit, smaller group of data, small unit, ठीक है, छोटा सा डेटा, लिमिटेड डेटा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम यूज किया जाता है। For example, government is where we are using this diagrams. Government is using the diagrams for census survey डेटा, सेंसस के सर्वे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है डायग्राम, सोशल इंस्टीट्यूट यूज करते हैं डायग्राम्स को टू क्रिएट द अवेयरनेस इन द पब्लिक, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड आई होप सो दिस इज important, you understand also and important also on the point of your exams or board exam. Moving on, another meaning of graphs, पूरा चैप्टर ही ग्राफ के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इकोनॉमिक्स, अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। As you know, continuous frequency distribution means data on a huge numbers, okay, large amount of numbers is presented। डेटा जो है वो लैक्स में, बिलियंस और डेटा अवेलेबल है, वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये क्या यूज करते हैं, हम ग्राफ, इकोनॉमिक्स में ग्राफ को यूज करते हैं। Over and above, these graphs can be used to represent other unclear statistic information। अगर आपके पास unclear information है, statistic information है, then also graphs are used to represent them। Second, to draw graph, we require proper measurement, and that is very much important, necessary, means proper measurement is necessary। अगर आपको ग्राफ करना है तो आपको proper measurement चाहिए। In present time, we are using this. Advertising companies use graphs to attract more customer towards their companies and product। आज के दौर में एडवर्टाइज कंपनीज है, ठीक है, यूज कर रही है ग्राफ्स को, क्यों, अट्रैक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि कंपनी में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। कंपनी शोज द ग्रोथ ऑफ सेल्स थ्रू ग्राफ्स। हाउ दे आर यूजिंग दिस ग्राफ्स? व्हाइल शोइंग द सेल्स, व्हाइल शोइंग द profits, while showing the comparison between two companies of their rivals, okay। These are the particularly usage of the graph which they are doing in their companies to attract the consumer and consumer towards their company। In economic, various types of graphs are there, ठीक है। For example, time series, trend diagram, bar diagram, cluster bar diagram, divide bar diagram, etc. These are the types of graphs in economics which we are using, okay। And moving on further, the last topic of this today's video is importance of diagram and graph। Now, why we require diagrams and graphs? What is the need? What is the importance of diagrams and graphs in economics? Okay? क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों इतना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंटेशन, ओके। सिंपल प्रेजेंटेशन यानी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज जो भी है वो भी हम आसानी से ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट बेस पे, सिंपल वे आउट में, ओके। इकोनॉमिक ट्रेंड्स इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रेंड इंफॉर्मेशन मीन्स पर्टिकुलरली आप ईयर बेस यानी पास्ट ट्रेंड्स, एस्टिमेटेड पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के टारगेट्स, आप तीनों बेस पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो डायग्राम्स और ग्राफ्स के टर्म पे, के अपकमिंग आप ग्राफ के अंदर या डायग्राम के टर्म पे, डायग्राम्स और ग्राफ के टर्म्स पे आप ट्रेंड बता सकते हो कि पहले हम इधर थे, अभी हम इधर है, आने वाले टाइम में हम कहाँ हो सकते हैं। मीन्स एस्टिमेशन निकाल सकते हैं फ्यूचर
पास्ट फ्यूचर के टर्म पे, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्म कर सकते हैं कि आगे चल के हम किस टर्म पे वर्कआउट कर सकते हैं. दिस इज हेल्पफुल इन अवर नेशनल इनकम ग्रोथ रेट टू कैलकुलेट. सेकेंड थिंग, कैपिटल इनकम ग्रोथ रेट बहुत ही आसानी से हम शो कर सकते हैं डायग्राम्स और ग्राफ्स के टर्म पे. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंड चेंजेस ऑफ वेरियस सेक्टर. आपके वेरियस सेक्टर्स को आप जब कंबाइन या कंपेयर करते हो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स के फॉर्म में, तो आसानी से पता चलता है कि कौन से सेक्टर में अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, या पर्टिकुलरली स्टेबल है. दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चेंजेस इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड वेरी इजीली. टू मेक द कंपैरिजन आल्सो इट इज वेरी इजीली इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. आप कंपेयर भी आसानी से कर सकते हो पैरामीटर्स को, रीजन को, सेक्टर्स को, टाइम पीरियड को, ग्रुप्स को. परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ईयर वाइज शो किया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो ये ईयर में इतनी पॉवर्टी थी, आज कम हुई है, ज्यादा हुई है, बढ़ गई है, क्या है पता नहीं. टाइम और एनर्जी आप सेव कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. टाइम और एनर्जी कैन बी सेव्ड, ओके, बाय दी डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. हमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोई चाहिए नहीं, प्रेजेंट करने की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे सामने अवेलेबल है, हम आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं, लेंदी फॉर्म में होता नहीं है. Second, in understanding principles of economics, certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagrams and ग्राफ. जो भी प्रिंसिपल्स है यानी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, डिफिकल्ट थिंग्स कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम आसानी से डायग्राम और ग्राफ के फॉर्म में समझा सकते हैं इकोनॉमिक में, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम. So this way the diagram and graphs are very much important for us in economics to present the data information which we had analyzed in the economic in a different sector. I hope so this video and the explanation of the three topics are very much worthful for you. Okay, dear students, in next lecture we will move further. Okay, have a nice day, good day. View my video properly. Go through with the notes also. This will be helpful for you to prepare yourself for the exam. Have a nice day. Bye. Good day.